So today we are going to start planes. Lines we have done. Now we are starting planes from today. Give the heading planes. So we'll go by the theorems. The equation of a plane लिखते जावा. Equation of a plane passing through a point and perpendicular to a vector n bar point A bar and perpendicular to a vector n bar is given by r bar dot n bar equals to a bar dot n bar. ये इसका इक्वेशन है. ये अपने को प्रूव करना है. अभी समझना ध्यान से. प्रूफ. अभी दिस इज अ प्लेन. ये एक प्लेन है. ये ड्रॉ किया. दिस इज अ प्लेन. ओके. नाउ इन अ प्लेन we have points. This is a point A bar and this is a point PR bar. Let this be joint. ये plane को perpendicular है. This is a perpendicular to plane. This is n bar. n bar is perpendicular to the plane. हाँ, plane को perpendicular है. अब इसका equation निकालना है. Let PR bar be any point on the plane on the plane का. ये plane का equation. AP bar is perpendicular to n bar. ये AP bar हो गया. This is AP bar. AP bar is perpendicular to n bar. Therefore इसका dot product 0 हो गया. AP bar dot n bar equals to 0 because both are perpendicular. When they are perpendicular, its dot product is always equals to 0. So AP bar को अपन क्या लिखेंगे? R bar minus A bar, R bar minus A bar dot n bar equals to 0. Bracket open करो. R bar dot n bar minus A bar dot n bar equals to 0. So R bar dot n bar is equal to A bar dot n bar. Simple. Equation of a plane. ये कौन सा equation आएगा? This is a vector equation. This is called vector equation of a plane. अभी दूसरा कौन सा इक्वेशन होता है? कार्टेशियन इक्वेशन. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. कार्टेशियन फॉर्म. इसका प्रूफ नहीं है कुछ. द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सर. हाँ बोलना. सर खाली एक मिनट में आया. एक मिनट में आया सर. हाँ. इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point A, x1, y1, z1 and direction ratio मतलब dr.
direction ratio of whose normal are A, B and C is given by, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगा, x minus x1 into A plus y minus y1 into B plus z minus z1 into C equals to 0. This can be written as ax plus by plus cz plus d equals to 0. This is the equation of a plane passing through a point and perpendicular to a vector. This is a equation of a plane passing through a point and perpendicular to a vector. उसका वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों गिवन है. तो पहले वाले में दोनों पॉइंट है और सेकंड वाले में वैसा ही है ना, में वेक्टर है ना, दोनों एक वेक्टर है. पॉइंट कैसे, ये तो वेक्टर लिखा है ना, पॉइंट वेक्टर और एक पॉइंट, पॉइंट एंड वेक्टर. यहाँ पे भी पॉइंट एंड वेक्टर, ये डायरेक्शन रेशियो वेक्टर के. घाई मत कर, बराबर से पढ़, घाई मत कर. नेक्स्ट थियरम लेते हैं. इसमें तीन चार चीजें हैं. इसमें से कोई भी थियरम नहीं आएगा, ये इतने छोटे छोटे थियरम है, ये कुछ आने वाले नहीं है. जस्ट आपको खाली जानकारी हो इसके लिए लिखवा रहा हूं मैं. हो गया, निकाल दूं क्या? Number 2, the vector equation of a plane passing through the point A bar and parallel to non-zero, समझना, parallel to non-zero and non-parallel vectors, non-zero and non-parallel vectors B bar and C bar. पॉइंट में से पास हो रहा है और दो वेक्टर को पैरेलल है, लेकिन वो दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल नहीं है. और सी नॉन जीरो है एंड नॉट पैरेलल है एक दूसरे से. दे आर नॉन जीरो, ऑब्वियसली नॉन जीरो तो हो ही गई. एंड दे, ये एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं है. बी एंड सी आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, बट ए बार इज पैरेलल टू बी बार एंड सी बार. ए बार इज पैरेलल टू बी बार एंड सी बार is given by r bar minus a bar dot
B bar cross C bar equals to 0. चलो इसका भी प्रूफ लिखवा ही देता हूँ. ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है. देखो ये दिस इज परपेंडिकुलर. व्हाई? बिकॉज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B bar एंड C bar. ये B bar है, ये C bar है, और ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ये, which is perpendicular. Same, this is A bar, this is P R bar, and this is A P bar. अपन ने वही फॉर्म में लिखा है जो अपन ने पहले लिखा था. B bar and C bar are two non-parallel vectors. Non-parallel is का दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला. क्रॉस प्रोडक्ट is always perpendicular to the plane. So this is the resultant B bar cross C bar, which is perpendicular to the plane. We have a point A bar, and we have two vectors B bar and C bar whose cross product is perpendicular to the plane. Any doubt? Any question? As vector B bar and C bar are parallel to the plane, vector B bar and B bar cross C bar is normal to the plane. Simple बात. दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो परपेंडिकुलर ही रहेगा. Also, the plane is passing let PR bar be any point on the plane. So AP bar is perpendicular to B bar cross C bar. So you can say AP bar dot B bar cross C bar equals to 0. Now AP bar is what? R bar minus A bar dot B bar cross C bar equals to 0. Simple. खाली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन से कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लेना है, बस दैट्स इट. सर हाँ. एक बार ये वापस समझाओ ना. B बार क्रॉस C बार निकाला, ये इसको परपेंडिकुलर आ गया, फिर अपन ने दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ले लिया, हो गया. उतना ही है. B and C are two non-parallel vectors. That means, so this is B bar cross C bar, and this is A bar. So this is AP bar dot B bar cross C bar equals to 0. AP bar की जगह पे R bar minus A bar into B bar cross C bar equals to 0. आ गया. क्या नहीं समझा वो बताता हूँ मैं आगे. इसमें तो है नहीं कुछ वैसा समझाने जैसा, बट क्या तेरे को प्रॉब्लम है वो बता. सर ये वेक्टर B bar and C bar how they parallel to the plane. They are non-parallel. ये perpendicular है ना. हमने प्रूफ में लिखा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ.
लिखा है ना, क्वेश्चन पढ़ना, पासिंग थ्रू एंड पैरेलल टू, दे आर पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू द प्लेन. B bar and C bar are parallel to the plane. Vector equation of plane passing through the point and parallel to non-zero, non-parallel vectors B bar and C bar. So if they are parallel to the plane, their cross product is perpendicular to the plane. And if it is cross product is perpendicular, their dot product is 0. बोलो, हो गया? हो गया क्या? हाँ सर. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट थ्योरम, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द plane passing through three non-collinear points. Passing through three non-collinear points. A bar, comma B bar, C bar is given by R bar minus A bar dot B bar minus A bar cross C bar minus A bar equals to 0. तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पास हो रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा वो बताओ. दिस विल बी द आंसर. सेम डायग्राम, अभी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बताओ. ये हो गया प्लेन, इसके अंदर तीन नॉन कोलिनियर बोला है, कोई ना कोई दो कोलिनियर हो गई, बराबर है. तो अपन बनाते हैं ये एक पॉइंट ए बार, ये बनाते हैं बी बार, और ये बनाते हैं सी बार. आप कैसे भी बना सकते हो, आपका चॉइस. बना दिया. ये एक पॉइंट पी कंसिडर किया, यहाँ पे पी आर बार, और यहाँ से ए और पी ज्वाइन कर दिया, इसको लिखा ए पी बार. ओके. अभी ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, ए और सी का. हाँ, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ. दिस इज ए बी बार एंड दिस इज ए सी बार. ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट विल बी परपेंडिकुलर. This is AB cross AC. I'll write here AB cross AC will be the perpendicular to the plane. बराबर ना. इसको AB और इसको AC, ये दोनों AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट ये परपेंडिकुलर होगा.
So let P R bar be any point. P R bar be any point on the plane passing through non-collinear points A bar, B bar, C bar. ठीक है, AP bar, AB bar and AC bar are coplanar. एक ही प्लेन में ना सब कोई, AP, AB and AC सब एक ही प्लेन में है, इसको लिखा कोप्लेनर. Therefore, AP bar dot AB क्रॉस AC is 0. डॉट प्रोडक्ट निकाला. ये देखो, ये परपेंडिकुलर है इसको, ये परपेंडिकुलर है, तो P बार AP बार is perpendicular to this, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया 0. तो AP बार ऑलवेज वी कैन राइट R बार माइनस A बार डॉट AB बार को लिखो B बार माइनस A बार, बराबर है, और AC बार को लिखो C बार माइनस A बार इक्वल्स टू 0. खत्म. Now this also we can write this as कौन सा आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. This can also be written as R bar minus A bar, B bar minus A bar, C bar minus A bar. याद है क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, भूल गए. This equals to 0. अब इसका कार्टेशियन फॉर्म भी आएगा. This is required vector equation. The Cartesian equation of the plane passing through 3 points A bar, B bar and C bar is given by x minus x1, x minus x2, x minus x3, y minus y1, y minus y2, y minus y3, z minus z1, z minus z2, z minus z3 equals to 0. x2 minus x1 आएगा, एक सेकेंड ना, x2 minus x1 and x3 minus x1, y2 minus y1, y3 minus y1, z2 minus z1 and z3 minus z1. और एक थ्योरम है, ये कब यूज करोगे, जब 3 पॉइंट दिया होगा. पहला इक्वेशन था जब एक पॉइंट से पास हो रहा था और एक को परपेंडिकुलर था नॉर्मल. दूसरा एक पॉइंट से पास हो रहा था और 2 वेक्टर को पैरेलल था. तीसरा 3 पॉइंट से पास हो रहा है, और अभी चौथा लिखेंगे. हो जाएगा तो बोलो. क्या बोला, ए बी और ए सी का जो वेक्टर है वो हाँ. परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन को. क्रॉस प्रोडक्ट तो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होता है ना भाई. हाँ सर. प्लेन को परपेंडिकुलर होएगा. प्लेन को परपेंडिकुलर है तो प्लेन में जितने पॉइंट है उसको भी परपेंडिकुलर होएगा. अरे अब बाद में आपने इसका ट्रिपल स्कैटर वेव रख लिया ना बाद में. हाँ,
इसी का मीनिंग ये होता है, डॉट इंटू क्रॉस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हो गया? हाँ सर। Sweetas theorem। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है, सीधा सीधा फॉर्मूला बता दिया ना तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। भले थ्योरम पूछा नहीं जाएगा लेकिन थ्योरम समझना बहुत जरूरी है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन at a distance p unit from the origin from the एक वेक्टर जो ओरिजिन से p यूनिट पे है और n यूनिट वेक्टर उसको नॉर्मल है, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? r bar डॉट n कैप इक्वल्स टू p। ये हो गया xyz कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक प्लेन है इधर, दिस इज अ प्लेन। ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर और ये पॉइंट है P, ठीक है। ये है ओरिजिन, ये वेक्टर है n कैप, ये वेक्टर है r बार, ये है कैपिटल N, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस है P, ओरिजिन से ये लाइन का जो डिस्टेंस है ये है P, देख के रखा है। तो उसके इक्वेशन अपने को ये प्रूव करना है। डिस्टेंस दिया है बस, और कुछ नहीं दिया, बोला डिस्टेंस निकालो, ये ओरिजिन से इसके डिस्टेंस पे है। प्लेन का इक्वेशन निकालो जो ओरिजिन से p यूनिट पे है, तो उसका इक्वेशन ये आएगा r bar डॉट n कैप इक्वल्स टू p, वेयर n कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो जो इक्वेशन आएगा ना तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। लेट o n बार b o n बार b the perpendicular to the plane o n equals to small p,
This is given O to n, distance between O to n is equal to P. ठीक है, as n cap क्या है, n cap is a unit vector. N cap is the unit vector along ON. So ON bar equals to P into n cap. यूनिट वेक्टर है तो P into n. ON का वैल्यू P है, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, तो P into n cap will be same thing. Let P R bar be any point on the plane. So NP bar is perpendicular to n cap. That is NP bar dot n cap equals to 0. That is R bar minus P n cap और एक स्टेटमेंट लिखना है इसके बाद. चलो आज का लेक्चर इससे में जाएगा यार, लिख ले. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. लेकिन अच्छा इसका प्रूफ नहीं है, लास्ट टाइम प्रूफ था, ये बार प्रूफ नहीं है. बहुत अच्छा हुआ. हो गया. ये साइड निकालो. Equation of the plane passing through the intersection of two planes. दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला तीसरा प्लेन, उसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका कोई प्रूफ नहीं है. इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट प्लेन विल बी r bar dot n1 bar equals to d1 bar, r bar dot n2 bar equals to d2 bar. ये दो प्लेन है जिसके इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास हो रहा है. Therefore the required equation of plane passing through the intersection of given planes is
r bar dot n1 bar plus n2 bar plus lambda d1 plus d2 इक्वल्स टू 0। देखो n1 प्लस n2 यहाँ से मिलेगा, d1 और d2 यहाँ से मिलेगा, लैम्डा ऐसे ही रखने का, सीधा सीधा आंसर मिलेगा। डन। देखो इसी के ऊपर क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन। ये निकाल दूं क्या, ये पार्ट निकाल दूं? हेलो, जवाब दो जल्दी जल्दी। इज दिस डन? हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. ये हो गया क्या? बोलो ना यार, नहीं तो सो गए मेरे को लगता है सब। चलो एक सम हो जाएगा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझ के ही आपको तुरंत ही रीड करके आपको समझ में आएगा कौन सा हो। ये इसके लिए जानबूझ के नहीं निकाला, ये अपने को यूज करना है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज 42 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या दिया है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन 42 यूनिट्स, p देके रखा है 42 यूनिट, which is normal to the vector, मतलब n बार देके रखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ये गिवन है। अभी n बार का तो वैल्यू है, n बार इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, तो पहले तो n कैप निकालो। n कैप इज n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार। n बार है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अंडर रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। So n cap equals to 2i cap plus j cap minus 2k cap, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 plus 4 9 under root 9 will be 1 by 3 of 2i cap plus j cap minus 2k cap। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। n कैप निकालना है भाई, n कैप निकालना है, इसके लिए n कैप निकाला, n बार दिया, n कैप निकाला। p is equal to 42, the vector equation of a plane is given by, देख कितना इजी है, r bar dot n cap इक्वल्स टू p। r bar को ऐसे ही रख, डॉट n cap कितना आया 1 by 3 2i cap plus j cap minus 2k cap इक्वल्स टू 42।
अब ये 3 को उधर छोड़ दे, इधर जाके, तो 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, r बार डॉट 2i कैप प्लस j कैप minus 2k cap equals to 146. This will be your final answer. बोलो क्या क्वेश्चन है? 126 आएगा। हाँ 126 126 होमवर्क में 2 सम दे रहा हूँ, ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताऊंगा। दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 9, 5, 6, 9 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई जरूर करना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं तीनों करवा दूंगा, वैसे तो आ ही जाएगा, इन केस नहीं आएगा तो प्लीज बोलना। ओके चलो, कल एक्सरसाइज खत्म, न्यू एक्सरसाइज चालू करने के लिए 2-3 फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे, दैट्स इट। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। 6.4 में खाली 5 ही सम है। हाँ हाँ हाँ, ट्रिगो 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 6.4 में खाली 5 ही सम है। चलो मिलते हैं 9:30 बजे, बाय बाय।